Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 4D of 4th chapter decimal fractions. First question. The weight of an object is 3.06 kg. एक ऑब्जेक्ट का वेट 3.06 kg है. Find the total weight of 48 similar objects. वैसे ही 48 similar objects का वेट क्या होगा? Weight of one object. एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 3.06 kg. एक ऑब्जेक्ट का वेट 3.06 kg है. Therefore, weight of 48 objects का वेट क्या हो जाएगा? 3.06 into 48, that is 306 by 100 into 48. तो कितना हो जाएगा? इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14688 kg. नीचे 2 जीरो है, मींस डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, इसलिए 146.88 kg. दिस इज आवर आंसर. Now question number 2. Find the cost of 17.5 meter cloth at the rate of rupees 112.50 per meter. 17.5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या होगा अगर 1 मीटर का कॉस्ट 112.50 रुपीज है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू rupees 112.50. Therefore, cost of 17.5 meter cloth equal to rupees 112.50 into 17.5. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 11250 by 100 into 175 by 10. 10 कट गया. इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा रुपीज 1968.75. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स क्योंकि नीचे 100 है. दिस विल बी आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल कॉस्ट रुपीज 73.40. 1 kg ऑयल का कॉस्ट है 73.40. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9.75 किलोग्राम्स ऑफ ऑयल. तो 9.75 kg का कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑयल इक्वल टू रुपीज 73.40. 1 kg ऑयल का कॉस्ट है 73.40. Therefore, कॉस्ट ऑफ 9.75 kg ऑयल इक्वल टू रुपीज 73.40 into 9.75, which is equal to 7340 by 100 into 975 by 100. 10 कट गया. 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा रुपीज 715.65. दिस विल बी आवर आंसर. Now question number 4. Total weight of 8 identical objects is 51.2 kg. 8 objects का weight है 51.2 kg. Find the weight of each object. तो एक object का weight क्या होगा? Weight of 8 objects is equal to 51.2 kg. एक object का weight है 51.2 kg. Therefore, weight of one object is 51.2 divided 8, which is equal to 512 by 10 into 1 by 8. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, which is equal to 64 by 10 means 6.4 kg. एक ऑब्जेक्ट का वेट होगा 6.4 kg. Now question number 5. 18.5 meter of cloth costs rupees 666. 18.5 meter cloth का cost है rupees 666. Find the cost of 3.8 meter cloth. तो 3.8 meter cloth का cost क्या होगा? Cost of 18.5 meter cloth is rupees 666. Therefore, cost of 1 meter cloth equal to
666 divided 18.5. So cost of 3.8 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा? 666 by 18.5 into 3.8. इसे हम लिख सकते हैं 666 by 185. इस डेसिमल को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, into 38 by 10. 0 0 कट गए. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 25308 by 185, which is rupees 136.80. This will be our answer. Now question number 6. Find the value of 0.5 of rupees 7.60 plus 1.62 of rupees 30. इसे ओपन करते हैं. 5 by 10 into 760 by 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस 162 by 100 into 30. 0 0 कट गए. 5 2s are 10, 0. 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 8s are 16. 0 0 कट गए. और यहाँ पर कोई रिडक्शन पॉसिबल है? यहाँ हम और कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे, विच इज इक्वल टू 38 by 10 प्लस 162 into 3 कितना होगा? 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, 486 by 10, which is equal to 3.8 plus 48.6. इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा रुपीज 52.40. This will be our answer. Now next bit. 2.3 of 7.3 kg plus 0.9 of 0.48 kg. इसे हम लिख सकते हैं 23 by 10 into 73 by 10 plus 9 by 10 into 48 by 100, which is equal to 23 into 73. हमें मिलेगा 1679 by 100 plus 9 into 48, 432 by 1000. This will be 16.79 plus 0.432. which will be equal to 17.222 kg. This will be our answer. Now next bit is 6.25 of 8.4 minus 4.7 of 3.24. इसे हम लिख सकते हैं 625 by 100 into 84 by 10 minus 47 by 10 into 324 by 100. अब यहाँ हम रिडक्शन करेंगे. 5 2s are 10, 0. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. 2 10s are 20, 2 4s are 8, 2 2s are 4, which is equal to, यहाँ और कुछ रिडक्शन होगा? यस. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 2s are 4, 2 1s are 2, that is 25 into 21 by 10. तो ये कितना हो गया? इसे सॉल्व करने पर 52.5 माइनस, अब ये वाला यहाँ तो कुछ रिडक्शन नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे? रिडक्शन यहाँ हो सकता है, बट इसे अगर हम रिड्यूस करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. बेटर है हम इसे डेसिमल फॉर्म में ही रखें. तो 47 into 324 हो जाएगा 15228. नीचे 1000 है, मीन्स पीछे से 3 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 37.272. This will be our answer. Now fourth bit, 0.98 of 235 minus 0.09 of 3.2. इसे हम लिख सकते हैं 98 by 100 into 235 minus 9 by 100 into 32 by 10. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 230.3 minus 0.288, which is equal to, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 230.012. This will be our answer. Now question number 7. Evaluate 5.6 minus 1.5 of 3.4. 56 by 10 minus 15 by 10 into 34 by 10. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2,
2 7 जा 14, तो ये हो गया 56/10 माइनस 17 3 जा 51/10, 56 minus 51 5/10, which is equal to 0.5. Now second bit, 4.8 divided 0.04 of 5. इसे हम लिख सकते हैं 48/10 divided 4/100 into 5. 5 2s are 10, 0, 4 5s are 20, which is equal to 48/10 divided 1/5. That is equal to 48/10 into 5. 5 2s are 10, 2 2s are 4, 2 4s are 8, which will be equal to 24. Now third one, 0.72 of 80 divided 0.2. तो इसे हम क्या लिखेंगे? 72/100 into 80 divided 2/10. 0 0 कट गए, which is equal to, इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 1 57.6. इसे अगर सॉल्व करें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, into 5 लिख सकते हैं, यहाँ डिवाइडेड है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, which will be equal to 288. इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें 288 मिलेगा. Now fourth bit, 0.72 divided 80 of 0.2. इसे हम लिख सकते हैं 72/100 divided 80 into 2/10. 0 0 कट गए. 72/100 divided 8 2 जा 16, which is equal to 72/100 into 1/16. हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 9/2 है. अब इसे सॉल्व करने पर 9/200, which will be equal to 0.045. Now bit 5, 6.45 divided 3.9 minus 1.75. इसे हम लिख सकते हैं 6.45 डिवाइडेड, अगर इसे माइनस करेंगे तो मिलेगा 2.15, which is equal to 645/100 divided 215/100. That is equal to 645/100 into 100/215. 100 कट गए. Now 645 और 215. 5 4s are 20, 5 3s are 15. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 9s are 45. 43 3s are 129. So our answer is 3. Now bit 6, 0.12 of 0.104 minus 0.02 plus 0.36 into 0.5. इसे हम लिख सकते हैं 12/100 into, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.084 प्लस 36/100 into 5/10, इतना हो जाएगा, which is equal to 12/100 into 84/1000 plus 36/100 into 5/10. Now 2 6 are 12, 2 5 are 10, 0. इसे और सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो डिवीजन और बढ़ेगा, बेटर है हम इसे इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 6 4s are 24, 6 8s are 48, 49 50, 504/5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros plus 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16. इसे हम लिख सकते हैं 18/100, which is equal to, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.19008. That's all for this video.